मॉर्निंग ऑल, वेलकम। हम 5 मिनट अभी भी चलना है। 10 बजे हमारा नोटिस था। अभी अल्टरनेटर के बारे में कुछ हम बताएंगे। क्लास गुड मॉर्निंग सर। मनोज जी चंदुड़ी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। चंदुड़ी ಬೇಗ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल। ಏನು गुड मॉर्निंग सर। ಓಕೆ ಕೊಡು Actually, we just had a session yesterday regarding alternator. I just realized that because 10 o'clock was our scheduled time. So it was the revision. Alternator had 3 parts. हमने देखा अल्टरनेटर को 3 पार्ट्स था कल। तो वो स्टेटर होगा, रोटर होगा और एक्साइटर होगा। सो स्टेटर पे वाइंडिंग हो रहा है और रोटर में वाइंडिंग होगा। एक्साइटर क्या करता है तो डीसी फ्लक्स देता है। और आर्मेचर और रोटर, आर्मेचर स्टेशनरी भी हो सकता है और वो रोटेटिंग भी हो सकता है। हमारा कल का क्लास था, अभी यूट्यूब में वीडियो भी है, जो देखा नहीं तो देख लीजिए वो। तो आर्मेचर का वोल्ट कंडीशन वो फील्ड भी हो सकता है और आर्मेचर भी हो सकता है स्टेटर में। दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे एंड है और हम देख लिया डीसी जनरेटर और का ईएमएफ भी देख लिया है। और अल्टरनेटर का ईएमएफ आज हमको देखना पड़ेगा। हमारा क्लास उसके लिए होगा डायरेक्टली। और वाइंडिंग के जमाने में वाइंडिंग में क्या क्या होता है, उसका पिच वगैरह क्या है, उसके बारे में भी बताएगा हम। इसमें लिए आवश्यकता है वो। I am waiting for 10 o'clock because people will be joining. Already we have issued 10 o'clock will be the starting of class. I request you to all mute, अपना मोबाइल म्यूट करना रिक्वेस्ट करता हूं मैं। और अपना मोबाइल तो लैंडस्केप में मोड में रख दीजिए। अपना मैक्सिमम पीपीटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको मैक्सिमम दिखने के लिए सभी क्या है और ट्राई करें तो आप म्यूट कर दीजिए अपने आप। और चैट जितना कर पाए तो नहीं कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल में आपका स्क्रीन बहुत छोटा होगा। उसके लिए चार्ज भी आ गया तो बाकी सभी को दिक्कत होगा। तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड वीडियो भी म्यूट कर सकता है, क्योंकि आपका थैंक यू सर। पार्डन मी। ओके सर। If you are feeling some problem or having some problem, you just give a message by chat. Okay, otherwise don't give more chat because the other persons will be getting problem. ओके सर। So I request everybody to turn off your video and audio mute mode. In case of any problem, you can just send me a message, but in case of emergency, otherwise it is getting totally disturbing. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ Mute yourself. You mute please. ಎಲ್ಲಿ ಹೌದಾ yourself. अपने आप। हेलो 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 ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। सर 10 o'clock ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. I am starting. Please stop talking kindly.
Okay. Ready to start. This is a ನಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನ virtual classroom. Virtual classroom, and ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದೇ ಮಾರ ನೀನ್ in the Blender learning mode. Blender learning ಹೌದಾ mode. One second, sir. Please mute. ನೋಡ್ತೀನಿ Sir. Please ನಾನು mute. ಯಾರ ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಸಿಂಗ್ ಯಾರ ಏನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ಸಿಂಗ್ ಯಾರವ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾ ಏ ತೆಗೆ Participants, ನೀವು kindly do not talk. Nimi, kindly. if Sir, you are all able mute, to sir. Mute everybody. Hello. ಆಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Good morning. Please mute. Say good morning. Okay, this is a virtual classroom, and in the Blender learning mode. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. So this is the virtual classroom brought to you by DGT and hosted by Nimi Chennai, and this session is co-hosted by NST Calicut Kerala, and my name is Prasad, and today we'll be discussing about alternator, and in this session हम क्या-क्या दिखेंगे हम बताएंगे, वाइंडिंग का पिचेस क्या है, पिच के बारे में बताएंगे, और EMF इक्वेशन के बारे में. We will be putting an EMF equation for the alternator, and alternator जब ड्रॉप लोड कर दिया तो उसमें वोल्टेज वेरिएशन होगा. तो कौन रीजन से वोल्टेज वेरिएशन होता है उसके बारे में हम बताएंगे. ओके, सो आप देख लीजिए, इतना कीवर्ड्स आपको मिलेगा आज का क्लास में. ये पहला टॉपिक में we'll be discussing about mechanical degree in the circle, and in every machine electrical degree भी है, क्या है वो बताएंगे, और क्या है वाइंडिंग पिच, क्या है पोल पिच, क्या है फुल पिच, क्या है शॉर्ट पिच. शॉर्ट पिच का एडवांटेज क्या है हम बताएंगे अभी. ओके, सो it is the degree in circle, electrical degree in the machine, winding pitch, pole pitch, full pitch, short pitch, advantage of short pitch. So मेरा सवाल ये है, एक सर्कल का डिग्री कितना है, मैकेनिकल डिग्री कितना होगा, आपको जानकारी है, वो 360 ही है. सो द डिग्री इन सर्कल इट इज 360. अभी जानकारी है सभी के लिए, आई नो. एंड अभी एक इलेक्ट्रिकल मशीन आ गया, हम तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, तो हमको जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन में कितना इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होगा. ओके, सो दिस इज द डिग्रीज इन इलेक्ट्रिकल मशीन, और उसका इक्वेशन भी पहले ही दे दिया है आपको. Electrical degrees in the machine, it is equal to 360 into number of pair of poles. 360 into number of pair of poles है सभी मशीन में होने वाला इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. अभी लेसन में एक पिक्चर दिया है, उसमें कितना पोल है, 1 2 3 4 पोल मशीन है. सो कितना पेयर ऑफ पोल्स होगा, ऑब्वियसली 2 poles. So it's a 2 pole machine. 4 pole machine, we can say it is 2 pair of poles. So abhi kitna electrical degrees hoga, how much electrical degrees in this machine, it is 360 into 2, that is 720 degree electrical. Okay, so that is the difference. Ek circle mein hoga 360 degree mechanical, lekin electrical degree hoga uska poles ke anusar. Okay, so that is the difference. machine mein jitna poles hai uske anusar hoga uska electrical degrees. अभी जो पिक्चर आप दिख रहा है उसमें 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल है मशीन में. ओके, ये मशीन में मैं बताता हूं, उसमें 48 स्लॉट्स है. देयर आर 48 स्लॉट्स इन दिस मशीन. ओके, you need not count, I am just telling you there are 48 slots. Now the question is, what is the electrical degree per slot? एक सिंगल स्लॉट में कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा, एक सिंगल स्लॉट में कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा. आसान है, आप ही बता सकता है. इट इज टोटल डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, दैट इज 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय 48. व्हाट इज 720? इट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इन द मशीन. सब इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इन द मशीन 720 हो गया, 48 नंबर ऑफ स्लॉट भी बन गया. तो इलेक्ट्रिकल डिग्री प्रति स्लॉट हो गया 15 डिग्री per slot. Okay, so
15 डिग्री पर स्लॉट मिल गया आपको। सो एक सिंगल स्लॉट पे 50 डिग्री होगा। इतना इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंस है, हम 3 फेज मशीन में 3 फेज सभी समय बताता रहता है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। We are always telling that 3 phase machine, it is having a phase difference of 120 degree electrical. Where it is coming from? Actually, it is by this method only. ऐसा ही मेथड है। अभी 15 का 8 स्लॉट चेंज कर दिया तो हमको बता सकता है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल 3 फेज मशीन में। अभी सोचो 15 डिग्री है एक स्लॉट का एंगल। अभी एक 3 फेज मशीन में तीनों फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे हम? पहला फेज दैट इज आर, सोचो आर एक स्लॉट में रख और वाई अभी बनाएंगे 8 स्लॉट के बाद। 8 कैसे आ गया? 15 into 8 will be getting 120, 15 into 8 will be getting 120. So R और Y अभी हो गया 120 degree electrical difference. Okay, so this is the total degrees in the machine. Equation is 360 into number of pair of poles. ये पिक्चर में 360 और 2 pair of poles 720 मिल गया। इसमें 48 स्लॉट्स भी है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट हो गया 15। ओके, अभी एक बात मैं बता दूंगा, पोल पिच है तो वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। पोल पिच बताएगा तो वो है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, मेरा सवाल ये भी है, अभी मेरा सवाल ये भी है, 2 ग्रीन लाइन आप देखता है पिक्चर में, 2 ग्रीन लाइन आपको दिखता है, उसमें कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री है? अभी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा? इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा? क्या सोचते हो आप? मैं ही बता दूंगा, वो होगा 180 डिग्री। मैकेनिकली हम देखें तो 90 डिग्री है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पे क्या है? इट इज 180। क्यों 180? ये पूरा मशीन के लिए हमने 720 बताया, पूरा मशीन के लिए 720 बताया, तो एक हाफ को होगा 360, एक हाफ को हो गया 360। अभी ये ग्रीन लाइन है क्वार्टर, सो उसको बनेगा 180। ओके, सो ये क्लैरिफिकेशन पहला ही होना चाहिए, 180 डिग्री है इलेक्ट्रिकल, इट इज नॉट 90। दैट इज द बेस्ट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये ग्रीन लाइन के बीच में हम बताएंगे मैकेनिकल डिग्री 90 और इलेक्ट्रिकल डिग्री 180। इलेक्ट्रिकल डिग्री अभी 180 है। क्यों? एक बार और बताएंगे, ये पूरा मशीन का डिग्री 720 है, आपको कैलकुलेशन से मिल गया 720 पूरा मशीन के लिए। हाफ सेक्शन के लिए, ये हाफ सेक्शन के लिए कितना होगा? 720/2, दैट इज 360 बनता है। सही है। सो ये 360 हाफ के लिए, तो क्वार्टर के लिए वो होगा 180 डिग्री। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। दिस एंगल जो आप मैंने मार्क कर दिया, वो इलेक्ट्रिकल डिग्री बताए तो 180 है, वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल डिग्री 90 है। सही है। ओके, सो इसमें पोल पिच बताए तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बताया हमने। तो बिटवीन एडजेसेंट अल्टरनेट पोल्स, एक S हो गया, एक N हो गया, दोनों के बीच होने वाला एंगल है पोल पिच। ओके, तो पोल पिच ये है, एडजेसेंट अल्टरनेट पोल्स के बीच में जितना एंगल होगा वो होगा पोल पिच। ओके, सो द कीवर्ड्स आर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इन द मशीन। इक्वेशन है 360 into number of pair of poles and electrical degree प्रति slot. Electrical degree per slot, it is total electrical degree in the machine divided by number of slots. और पूरा मशीन में पोल पिच कितना होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। और आपका कंफ्यूजन अभी क्लैरिफाई हो गया। ये ग्रीन लाइन देखता है, ये मैकेनिकल 90 डिग्री है तो भी वो इलेक्ट्रिकल 180 है। वो अभी क्या हो गया है? वो एक पोल पिच का डिफरेंस में रख दिया है। ओके, सो द कीवर्ड्स वर द इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इन द मशीन, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, and pole pitch, and pole pitch how much degree electrical, it is 180 degree. Okay, clear, thank you. Now
we are going to tell about winding pitch. Winding के pitch के बारे में, pole pitch के बारे में, full pitch winding के बारे में. इतना 3 items, 3 terms आप मन में रख दीजिए. Winding pitch, pole pitch और full pitch. Okay. ये मशीन में हमने अभी ही बताया कितना स्लॉट्स है, उसमें 48 स्लॉट्स है. So there are 48 slots and 4 poles. Pole pitch का calculation it is slot by poles. Pole pitch का equation ये है, it is slots divided by poles. How much it will be? That in this machine it will be 48 divided by 4, that is 12. So 12 is the pole pitch. अभी pole pitch slot के बारे में बताया तो slot के number of slots बताया तो 12 हो गया. ओके, स्लॉट के बारे में बताया तो 12 है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में है तो 180. ओके, तो पोल पिच 2 कंडीशन में बता सकता है. क्या क्या? स्लॉट्स के बारे में, स्लॉट के मदद से और एंगल से मदद से. पोल पिच इलेक्ट्रिकल एंगल में 180 हो गया, और ये कंडीशन में, ये पिक्चर में 12 स्लॉट भी बता सकता है. ओके, सो इट इज नोन एज पोल पिच. अभी पोल क्या है आपको समझ में आ गया? पोल पिच का इक्वेशन ये है. पोल पिच का इक्वेशन है स्लॉट्स बाय पोल्स. सो नाउ इन दिस केस इट इज 12. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट वाइंडिंग पिच. ध्यान से सुनना पोल पिच के बारे में. अभी देखना ये पिक्चर देखे तो हमारा पहला सेक्शन एक स्लॉट में रख दिया है. इधर तो एक स्लॉट बता सकता है, पहला स्लॉट में रख दिया. दूसरा सेक्शन ये स्लॉट में रख दिया. स्लॉट का नंबर आप देखना, स्लॉट का नंबर पहले तो स्लॉट 1 में है, दूसरा तो स्लॉट 13 में. ओके, नीचे आप कोइल देख रहा है. ये कोइल का पहला कंडक्टर कोइल साइड बताता है. पहला कोइल साइड पहला स्लॉट में रख दिया और दूसरा स्लॉट हो गया स्लॉट नंबर 13. सो इसके बीच में कितना स्लॉट का डिफरेंस है? 13 minus 1, that is 12. Okay, so slot it is 1 plus 12. We are getting the last second coil side into 13. Okay, अभी इसको बताता है वाइंडिंग पिच. तो वाइंडिंग पिच अभी कितना है? 12. क्यों 12 बताता है? पहला स्लॉट है 1 में और उसके 12 ऐड कर दिया तो हमको मिलता है स्लॉट 13. तो वाइंडिंग पिच अभी 12 है. पोल पिच हमने देख लिया 12 है. अभी वाइंडिंग पिच, इसी वाइंडिंग में कितना है? वाइंडिंग पिच भी 12 है. ओके, तो इसमें कंडीशन ये है, जब पोल पिच और वाइंडिंग पिच, पोल पिच और वाइंडिंग पिच ऊपर लिखा है. वाइंडिंग पिच जब पोल पिच को इक्वल होता है, दैट इज 12 and 12 both are equal. When it is equal, we'll be telling such winding as full pitch winding. Such windings we will be telling full pitch winding. Okay, so this is known as full pitch winding. So in this particular slide, we have seen winding pitch, pole pitch, and full pitch winding. It is important thing. Please hear once again and just repeat. We are telling about winding pitch, pole pitch, and full pitch. How much slots are there in the machine? ये machine में 48 slots है, 4 poles है. अभी pole pitch का equation क्या है? Number of slots divided by number of poles. Number of slots divided by number of poles है pole pitch का equation. इसी picture में कितना slots है? 4. कितना poles है? 4. So 48 divided by 4, it will be 12. तो हमको मिल गया pole pitch का equation and result as 12. ओके, अभी हम बताएंगे वाइंडिंग पिच के बारे में. वाइंडिंग तो एक कोइल है, आप देख सकता है एक कोइल इसी साइड पे. कोइल का पहला साइड हम स्लॉट 1 में रखता है. अभी कोइल का दूसरा साइड हम स्लॉट 13 में रखता है. ओके, तो 1 स्लॉट 13, इसके डिफरेंस हो गया 12. सो 1 plus 12 we are getting 13. So we are putting 12 as the winding pitch. So winding pitch ये है, स्लॉट का डिफरेंस कितना है? स्लॉट का डिफरेंस, वाइंडिंग में कोइल का डिफरेंस कितना स्लॉट्स का है उसको बताता है वाइंडिंग पिच. ओके,
वाइंडिंग पिच का और भी नाम है कोइल स्पैन बताएंगे, कोइल स्पैन। सो वाइंडिंग पिच एंड कोइल स्पैन सेम ही है। सो वी हैव गॉट द पोल पिच एंड वाइंडिंग पिच एज 12, एंड बिकॉज वाइंडिंग पिच एंड पोल पिच आर इक्वल, वी विल बी टेलिंग इट एज फुल पिच वाइंडिंग। अभी ये वाइंडिंग को हम बताता है फुल पिच वाइंडिंग। आप पिक्चर में देख सकता है, ये पहला वाइंडिंग इधर से शुरू कर दिया और वो जाता है 1 से लेके 13th स्लॉट को। सो ये वाइंडिंग रहा फुल पिच वाइंडिंग। ओके, ये रहा फुल पिच वाइंडिंग। ओके, आप सोचा होगा क्यों इतना मुश्किल है इतना बताने के लिए। सो उसमें चीज है बताने के लिए। तो आपको वाइंडिंग पिच समझ में आया, पोल पिच समझ में आया, फुल पिच समझ में आया। अभी जाएंगे अगला पिक्चर, ये देखेंगे। अभी इधर भी पोल पिच 12 ही है। पोल पिच सभी समय एक ही होगा एक मशीन में। तो इसमें कितना है पोल पिच, वो 12 ही है। पोल पिच इसी मशीन में 12 ही है। ओके, सो द पोल पिच इज सेम, बट इसमें वाइंडिंग पिच 12 नहीं है। वाइंडिंग पिच 12 नहीं है। कितना है वाइंडिंग पिच? अभी 8 हो गया। वाइंडिंग पिच 8 है तो पहला स्लॉट 1 में रख दिया तो दूसरा वाइंडिंग का कोइल किसी स्लॉट पे आता है 1 + 8 9 पे आता है। ओके, वाइंडिंग पिच 8 है तो 1 + 8 इट विल बी 9। सो स्लॉट नंबर 1 पे 1 रख दिया, स्लॉट नंबर 9 पे दूसरा कोइल साइड रख दिया। सो एक कोइल का 2 कोइल साइड से पहला कोइल साइड स्लॉट में 1 में रख दिया, दूसरा कोइल साइड स्लॉट नंबर 9 में रख दिया। ओके, सो दिस इज द वाइंडिंग पिच। आपको क्या समझ में आ गया? ये वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम है। वाइंडिंग पिच क्या है? पोल पिच से कम हो गया। पोल पिच से जब वाइंडिंग पिच कम होता है उसको बताएंगे क्या? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, इट इज शॉर्ट पिच। एक सवाल मेरे को आया, किधर से मिला ये वाइंडिंग पिच 8? ओके, मेरे को सवाल है किधर से आता है 8? बता दूंगा। ये वाइंडिंग पिच हम मैन्युफैक्चरर डिजाइनर रखता है। ओके, कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस है और कुछ एडवांटेज है। सही पूछा आपने, कोई एडवांटेज से कौन डिसाइड करता है? डिजाइनर। कोई एडवांटेज है उसमें, वो डिजाइनर फाइनलाइज करता है। तो आप पूछेगा क्या है एडवांटेज, वो ही बताता है अगेन अगला स्लाइड में। तो फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ये दोनों आपको समझ के आ गया क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, वो बता देंगे अभी। ये वाइंडिंग पिच 8 है, वाइंडिंग पिच और शॉर्ट पिच कर दिया। देयर इज नो डायरेक्ट इक्वेशन, बट इट इज डिसाइडेड बाय द डिजाइनर। क्यों शॉर्ट पिच यूज करता है? शॉर्ट पिच ही यूज करेगा मेनली। अभी आप देख सकता है ये फुल पिच वाइंडिंग कर दिए तो, फुल पिच वाइंडिंग कर दिए तो आपको मिलने वाला साइन वेव में और कुछ भी वेव शेप आने का चांसेस है। क्योंकि हम देखता है ये साइन वेव आना है, वी नीड द साइन वेव ओनली, प्योर साइन वेव वी आर एक्सपेक्टिंग। द रेड आइटम वी आर एक्सपेक्टिंग डायरेक्टली। हमारा प्रतीक्षा यह है ये रेड वाला साइन वेव आएगा, अच्छा तरह साइन वेव आएगा अल्टरनेटर से। लेकिन फुल पिच वाइंडिंग कर दिए तो, फुल पिच वाइंडिंग कर दिए तो ये साइन वेव के साथ साथ और भी कुछ वेव शेप आएगा, और भी कुछ वेव शेप आएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ऑटोमेटिकली और कुछ वेव शेप आएगा और हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। और उसको बताता है क्या? उसको बताता है हार्मोनिक्स। ओके, तो फुल पिच वाइंडिंग का प्रॉब्लम ये है, साइन वेव हम प्रतीक्षा करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके साथ साथ हार्मोनिक्स आएंगे। ओके, सो हार्मोनिक्स रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? हम शॉर्ट पिच करेंगे, शॉर्ट पिच और फ्रैक्शनल पिच। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इसके लिए हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग कर रहा है अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच कर दिया। अभी आप देख सकता है जो भी हार्मोनिक्स है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली लेस हो गया, रिमूव नहीं होता है लेकिन उसका प्रॉब्लम कम होगा। ओके, तो हार्मोनिक्स आप देख रहे हैं, पूछा मेरे लिए क्या है हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स ये है अनवांटेड वेवफॉर्म्स आएगा। हम सोचते हैं 50 डिग्री 50 हर्ट्ज का साइन वेव आता है, लेकिन उसके साथ साथ
और भी बहुत वेव्स फॉर्म्स आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। ओके, हमको जो नहीं चाहता है उसका फ्रीक्वेंसी ऐसा वेव शेप ऑटोमेटिकली आएगा, उसको बताता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक का पिक्चर आप देख सकता है, फुल पिच में इतना हार्मोनिक्स आता है, आता है ना। ये रेड वाले हमको चाहिए, ब्लैक, वायलेट, ग्रीन, बाकी सभी हमको नहीं चाहिए एक्चुअली, वो डिस्टर्ब करेगा हमारा सिस्टम को। ये इसको चीज को बताता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स होता ही रहेगा, लेकिन वो शॉर्ट पिच हो गया तो कम होगा। हमको हार्मोनिक जितना कम कर सकता है वो भी अच्छा है। सो हम क्या करेंगे, कोई मशीन में कोई अल्टरनेटर में वाइंडिंग की है तो जनरली मैन्युफैक्चरर करेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट फुल पिच वाइंडिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे। ओके, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने के लिए हार्मोनिक्स का एक एडवांटेज बता दिया, और भी एडवांटेज है वो भी बताएंगे, सेव कॉपर कनेक्शन। अभी वाइंडिंग कुछ कम कर दिया, वाइंडिंग कम कर दिया, 12 होना था, हम कर दिया 8, तो इफेक्टिवली हार्ट हैपेंस, हमको कॉपर कुछ सेविंग हो गया। ओके, कॉपर का कनेक्शन, इफेक्टिव कॉपर कम हो गया। Okay, so copper saving means you are saving big amount of money, and when the connection length is reduced, उसका losses कम होता है, I squared R loss होगा, resistance loss होगा। अभी कुछ कम हो गया, अभी हो गया तो क्या होगा, उसका efficiency बढ़ेगा। So copper का length कम हो गया, resistance कम होगा, resistance कम हो गया तो loss कम होगा, loss कम हो गया तो efficiency बढ़ेगा। और जो बता दिया उसका हार्मोनिक्स कम होता है, हार्मोनिक्स कम होता है। और हार्मोनिक्स कम हो गया तो क्या होगा, बहुत सारा और लॉस, हिस्टेरिसिस, एडी करंट जैसा फ्रीक्वेंसी से जुड़ा वाला लॉस बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनिक्स ये भी है, उसमें अनवांटेड लॉस बनेगा, वो लॉस अभी कम होगा शॉर्ट पिच करने के मदद से। ओके, तो हार्मोनिक्स कुछ होगा शॉर्ट पिच में भी, लेकिन शॉर्ट पिच किए तो हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड और उसका परिमाण कम होगा। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ भी है, डिसएडवांटेज भी है शॉर्ट पिच करने में। अभी सोचो 12 था हमारा पिच, वो 8 कर दिया तो उसका वोल्टेज भी कम होंगे, वोल्टेज कम होंगे। ओके, द वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड, वोल्टेज रिड्यूस हो गया तो प्रॉब्लम है। और भी एक प्रॉब्लम है, वो जो वोल्टेज आता है दो कॉइल का साइड में, वो क्या नहीं होगा, वो डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली ऐड कर सकता है नहीं, लेकिन वो वेक्टर सम करना होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये लास्ट 2 पॉइंट्स अभी। ओके, ये फर्स्ट पिक्चर ये फुल पिच का है, अभी नीचे दे सकता है आपको, आई विल एक्सप्लेन दैट दिस इज अबाउट द फुल पिच वाइंडिंग अल्टरनेटर। ये फुल पिच वाइंडिंग का अल्टरनेटर पे है। ओके, अब क्या समझता है, उसमें कोइल में ए बी कोइल साइड है और बी सी कोइल साइड है। क्या है वो, अभी सोचो कोइल ऐसा है, ये ए रहा, ऊपर में बी आता है, और इधर भी बी बता देंगे हम क्योंकि वो कनेक्शन कॉमन है, इधर सी। सो एक कोइल का दो कोइल साइड है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। ओके, ए बी एंड बी सी है, एक कोइल का 2 कोइल साइड्स। अभी फुल पिच है तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड कर सकता है। अभी हमारे पास एक कोइल है, एक कोइल में 2 कोइल साइड्स है, ये 2 कोइल साइड्स का नाम क्या है, एक कोइल साइड का नाम है ए बी एंड बी सी। क्या डिफरेंस है उसमें, ए बी इधर आएगा और बी सी इधर आएगा। एक फुल पिच वाइंडिंग हो गया तो ये एक फुल पिच वाइंडिंग है, और ए बी आप देख सकता है और बी सी आप देख सकता है। सोचो उसका वोल्टेज 2 और 2 है, तो इफेक्टिव वोल्टेज 4 बनेगा, 2 + 2 इट विल बी गेटिंग 4। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल पिच है तो इसको बताता है अरिथमेटिक सम। 2 वोल्टेज आ गया एक कोइल साइड में, दूसरा कोइल साइड में 2 आ गया, 2 + 2 हमको बताएंगे टोटल वोल्टेज 4 बनाता है, वो है अरिथमेटिक सम। ओके, सो ये किसमें करता है, ये फुल पिच वाइंडिंग में। अभी हम बताएंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होगा चीज। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकता है। इधर भी आप देख सकता है, इधर भी आप देख सकता है, ए बी एंड बी सी,
ओके, इधर ए बी इस साइड पे है और बी सी इसी साइड पे है, लेकिन उसमें 2 और 2 वोल्टेज है तो भी हमको 2 + 2 करके 4 नहीं डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि वो फुल पिच नहीं है, वो वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है। सो उसके लिए कुछ और भी फॉर्मूलास चाहिए। तो आप देख सकता है ये वेक्टर एडिशन करना है। हम तो कैलकुलेटर में स्टडी कर दिया है क्या है वेक्टर एडिशन। सो हियर वी विल हैव टू डू वेक्टर एडिशन। ये एंगल को आप मन में रखना, ये बताता है शॉर्ट कोडिंग एंगल और शॉर्ट पिचिंग एंगल अल्फा। ओके, ये डायरेक्टली फुल पिच है तो 180 हो गया था, अभी हो गया एक एंगल का डिफरेंस में, और इसको बताएंगे शॉर्ट पिचिंग एंगल अल्फा। ओके, so this is the difference between full pitch winding and short pitch winding. full pitch winding में 2 कोइल साइड का वोल्टेज डायरेक्टली ऐड कर सकता है, लेकिन शॉर्ट पिच वाइंडिंग में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई अल्फा एंगल से कम हो गया है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। तो ए और बी का डायरेक्टली वोल्टेज अभी वेक्टर सम कर पड़ेगा। ओके, सो वेक्टर सम कर पड़ेगा और उसको हम कुछ इक्वेशन डायरेक्टली दे देंगे। ओके, सो दिस इज शॉर्ट पिचिंग एंगल। अभी आपको एक एंगल का समझ में आ गया, एंगल था, एंगल को क्या है अल्फा, अल्फा तो क्या है शॉर्ट पिचिंग एंगल। नेक्स्ट कुछ स्लाइड में आपको 2 फैक्टर भी लेना पड़ेगा। वो फैक्टर्स का नाम है पिच फैक्टर और कोइल स्पैन फैक्टर, केपी और केसी बताता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी बताएंगे। अभी 2 टर्मिनोलॉजी है, पिच फैक्टर और कोइल स्पैन फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, कोई पिच फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म केपी बताएंगे यानी केसी बताएंगे। हम पहले पिच फैक्टर समझ करेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये क्यों करता है पिच फैक्टर, आप डायरेक्टली इक्वेशन ले सकता है, इक्वेशन आप डायरेक्टली ले सकता है। क्या है वो cos α/2 बनेगा, cos α/2 बनेगा। अल्फा किधर से मिल गया, लास्ट हमने देखा अल्फा, वो अल्फा और cos α/2 मिल गए तो आपको पिच फैक्टर मिलेगा। ओके, ये पिच फैक्टर क्यों लेता है, पिच फैक्टर क्यों लेता है, ये पिच फैक्टर हमारे लिए ईएमएफ इक्वेशन में चाहिए। ओके, ईएमएफ इक्वेशन में चाहिए। क्यों ईएमएफ इक्वेशन चाहिए, सोचो अल्टरनेटर मैन्युफैक्चर एक है, अल्टरनेटर मैन्युफैक्चर 2 भी है, सो सभी मैन्युफैक्चरर का इक्वेशन एक ही होना चाहिए। ओके, तो कोई एक करेगा फुल पिच वाइंडिंग और कोई करेगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग, तो उसके अनुसार ये कॉमन इक्वेशन बनाया तो ये आसान होगा। तो उसके लिए एक फैक्टर बनाता है, तो ये फैक्टर cos α/2 मिलेंगे। तो सोचो फुल पिच वाइंडिंग में cos α/2 कितना होगा, cos α/2 वो अल्फा हो गया 0। ओके, अल्फा हो गया 0 फुल पिच वाइंडिंग में, क्योंकि वो डायरेक्ट कंटिन्यूटी पे है। ओके, फुल पिच वाइंडिंग में अल्फा होगा 0, तो cos 0 आपको जानता है 1, तो 1 ही है, पिच फैक्टर 1 होगा किसके लिए, फुल पिच वाइंडिंग में। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कोडिंग एंगल और शॉर्ट पिचिंग एंगल कितना है उसके अनुसार हमको पिच फैक्टर मिलेंगे। ये भी याद रखना, शॉर्ट पिच फैक्टर सभी समय ये के कम होगा। अभी इसका इक्वेशन आप मन में रख दीजिए, क्या है पिच फैक्टर का इक्वेशन, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों कोई सेट में एक ही वोल्टेज है, तो आपको अरिथमेटिक सम आसान से कैलकुलेट कर सकता है। 2 है तो 2 + 2 4 बनेगा, तो दैट इज अरिथमेटिक सम। अभी वेक्टर सम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वेक्टर सम डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम आपको मिलेंगे पिच फैक्टर। ये पिच फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए cos α/2 है डायरेक्ट इक्वेशन। ये कैसे आ गया अभी मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरा पीपीटी में आपको बाद पीपीटी मिले तो आप देख सकता है। सो पिच फैक्टर किसके लिए एक और बार बता देंगे, सभी जनरेटर का इक्वेशन में एक फैक्टर चाहिए। क्यों कुछ मैन्युफैक्चरर शॉर्ट पिच करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरर फुल पिच करेंगे, तो सभी के लिए कॉमन इक्वेशन बनने के लिए एक फैक्टर देता है। उसका इक्वेशन है वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय
arithmetic sum of induced EMF, and direct equation is cos alpha by 2, where alpha is the coding angle. Okay, अभी हम देखेंगे अगला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वो भी किसमें चाहिए, हमारा EMF इक्वेशन. तो क्यों, वो भी डायरेक्टली बता देंगे आपको क्यों ये चाहिए. आप सोचो, आप देख सकता है दो एक पिक्चर राइट साइड में और ये वाला आप देख सकते हैं. तो RYB तीनों कलर में है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. ये 3 फेस का है, फेस ए, फेस बी, फेस सी का बाइंडिंग दिया है सेपरेट सेपरेट जगह पे. ओके, ऐसा बाइंडिंग कर दिया तो हम बताएंगे उसको कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग. ओके, एक 3 फेस मशीन में और 3 फेस अल्टरनेट में बाइंडिंग पूरा फेस एक जगह और बी फेस एक जगह और सी फेस एक जगह बताए तो हमको बता सकता है कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग है. लेकिन मेनली ऐसा नहीं करेगा. बाइंडिंग कैसे करेंगे हम, बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट आप देख सकता है सभी मिलके करेंगे, फेस ए, फेस बी, फेस सभी मिक्स करके करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे और उसको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बताएंगे. सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करे तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो अच्छा इंडक्शन हो जाएंगे, अच्छा साइन वेव आएंगे. ओके, सो वाइंडिंग फैक्टर इसको बताता है. सो 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, वन इज इन द राइट, दैट इज वाइंडिंग, एंड इन द लेफ्ट साइड इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. ओके, कॉन्स्टेंट वाइंडिंग तो हमको अरिथमेटिक्स लेता था, सभी कोई वोल्टेज ऐड कर सकता था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो उसमें भी वेक्टर सम आना है. तो सोचो, ये रहा हमारा डिफरेंट कोइल का वोल्टेज. ये बता देंगे हम, कोइल ए बी में एक वोल्टेज है, कोइल ए बी में एक वोल्टेज, और कोइल बी सी में एक वोल्टेज, और कोइल सी डी में एक वोल्टेज. ये तीनों वोल्टेज डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग है. तो इसमें भी आप एक एंगल दे सकता है बीटा. ओके, सो ये बीटा के अनुसार हमको फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूटर तो सभी का वोल्टेज डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता. डायरेक्टली ऐड करने को बताता है, क्या बताता है, उसको बताता है अरिथमेटिक एडिशन. अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर सकता इन डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग. डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर सकता. हमको क्या करना है, वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर एडिशन, यू आर सीइंग द पिक्चर, A, B, B, C and C, D are vectorically added by the angle beta. बीटा आपके पास है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिलेगा. इट इज sin n beta by 2 divided by n sin beta by 2. Don't worry about that. It is the equation for distribution factor. And ratio of EMF with distributed winding and EMF with concentrated winding, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का इक्वेशन. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का इक्वेशन ये है EMF with distributor winding divided by EMF with concentrator winding. हमने बताया क्यों ऐसा दे दिया. डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग तो डायरेक्टली अरिथमेटिक ऐड कर दिया था, लेकिन अल्टरनेटर में ऐसा नहीं दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर करके दिया है. तो सभी मैन्युफैक्चर के लिए एक ही इक्वेशन बनने के लिए हम 2 फैक्टर्स लेता है. क्या क्या फैक्टर्स था, पहला था पिच फैक्टर, अभी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KP and KD. Okay, so these are the 2 factors you will be using in the EMF equation. So we have seen 2 factors and we are going to derive EMF equation for alternator right now. Let us say, अभी देखेंगे क्या क्या है उसमें. हम जा रहा है EMF equation कैसे आएंगे बताने के लिए. आप देख सकता है इक्वेशन इधर. अभी एक कोइल है राइट साइड पे एक कोइल दिख रहा है आपको. राइट साइड पे एक कोइल है. एक कोइल में सिंगल टर्न है. एक कोइल में क्या है, सिंगल टर्न. ओके, इट इज हैविंग 1 टर्न and it is having 1 coil side here and 1 coil side here. So we can say there is 1 turn. 1 turn will be having 2 coil sides. Otherwise it is known as 2 conductors. Coil sides and conductors. दो एक ही नाम है. So 1 turn में 2 conductors होगा. Okay. तो अभी
हमको कैलकुलेट करना है एक पूरा फेस में कितना कंडक्टेंस होगा, पूरा फेस में कितना कंडक्टेंस होगा। इट इज 2t, सो z इज इक्वल टू 2t, z विल बी इक्वल टू 2t। एक पूरा फेस में कितना टर्न्स होना है वो अभी मिल गया हमको, z इज इक्वल टू 2t। ओके, एंड p इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स हमको जानकारी है, n इज इक्वल टू स्पीड वो भी जानकारी है, और उसका इक्वेशन होगा क्या, rpm। सो n इज rpm एंड frequency f and it is in hertz and flux is flux per pole। ये इंपॉर्टेंट है, एक पोल का फ्लक्स पर पोल इन वेबर। अभी आपको बताया क्या है kd, क्या है kc, उसका इक्वेशन है, और फॉर्म फैक्टर पूरा एसी में फॉर्म फैक्टर है, और वो अभी जानकारी है साइन वेव में वो 1.11 रहेगा। ओके, और आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट कर सकता है फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। ओके, फॉर्म फैक्टर से एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई किए तो हमको एवरेज आरएमएस वैल्यू मिलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर ईएमएफ इक्वेशन। जस्ट once again I'll go. Z is the total number of conductors per phase। हमको जानकारी होना चाहिए एक फेस में कितना वोल्टेज आएंगे, कितना वोल्टेज आएंगे उसके नंबर टर्न्स के अनुसार होगा ना। तो फेस पे कितना टर्न्स है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो हमको कंडक्टर्स मिलेंगे। सो दैट इज Z इज इक्वल टू 2t, और P बनना है N F 5 नॉर्मल आइटम से KD KC हमने पहला स्लाइड में देख लिया, फॉर्म फैक्टर KF देख लिया, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू और हमको कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो हमको आरएमएस वैल्यू मिलेंगे। तो हम देखेंगे इधर हम एक फेस का बारे में बात करता है, अभी एक फेस में कितना वोल्टेज आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, वी कैन से 2 पोल्स आर देयर। इधर 2 पोल्स है, 2 पोल्स के बदले हम बताएंगे p पोल्स। ओके, p पोल्स है, और फ्लक्स हमने देख लिया, फ्लक्स इज फ्लक्स पर पोल, एक पोल में होने वाला फ्लक्स। सो एक पोल में होने वाला फ्लक्स 5 है, और 5 इट इज अ सिंबल, एंड नंबर ऑफ पोल्स इज p, हियर p इज इक्वल टू 2। सो एक फेस का कंडक्टर्स एक बार पूरा घुमाए तो if the conductor is rotating once through the area, how much flux it will be cutting, and in single revolution हमको बता सकता है 5p webers कट होगा, एक कंडक्टर में 5p webers कट होगा। ओके, 5p webers कट हो गया, क्योंकि एक पोल में 5 है वेबर एंड नंबर ऑफ पोल्स p है, मल्टीप्लाई करना टोटल फ्लक्स होगा एक सिंगल रेवोल्यूशन में कट करने वाला 5p। सर अभी हमको क्या मिल गया, आपका एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर, एक कंडक्टर एक बार रोटेट किए तो वो कट करेगा 5p फ्लक्स को। ओके, अभी फ्लक्स कट हमको जानकारी है, अभी हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सो वी नो द इक्वेशन, इट इज EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कट। फ्लक्स कट कितना है उसके अनुसार होगा EMF, दैट इज फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम, फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम। सो फ्लक्स कट इज 5p, हमको एक रेवोल्यूशन का टाइम अभी चाहिए, एक रेवोल्यूशन का टाइम चाहिए, तो एक रेवोल्यूशन का टाइम चाहिए तो अभी हमको जानकारी है n RPM है, n RPM तो होगा n/60 RPS रेवोल्यूशन पर सेकंड, n/60 revolution per second, revolution divided by second। so वो उल्टा कर दो, revolution per second, so second पर revolution होगा, उल्टा कर दिया तो हमको मिलेंगे 60/n, एक revolution को हमको मिलेंगे 60/n second। so one revolution it is requiring 60/n second। so हमको टाइम मिला अभी एक revolution के लिए, फ्लक्स कट भी मिला। सो फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम हमको मिलेंगे एवरेज EMF। सो फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम है हमारा EMF एज पर आवर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, ये कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे तो EMF होगा, और EMF का मैग्नेट ऐसा होगा जितना ज्यादा कट होता है तो।
सो डिवाइडेड बाय टाइम, फ्लक्स कट बाय डिवाइडेड बाय टाइम है तो 5p डिवाइडेड बाय 60 by n, और वी कैन से 5pn by 60. सो ये क्या हो गया, ये एक सिंगल कंडक्टर में होने वाला एवरेज ईएमएफ. ओके, तो हम क्या करेंगे इसको 120 f by p 5pn by 60 में हम क्या करेंगे, n सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 5p by 60 इंटू n के बदले 120 f by p बन गया. ओके, सो 5p1 by 60 अभी हो गया 5p by 60 इंटू 1/120 f by p. हमको मिल गया 5pn by 60, 5pn 60 अभी बन गया 5p by 60 इंटू 120 f by p. फाइनली विल बी गेटिंग 25f अभी क्या है, वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन. एक कंडक्टर एक बार रोटेट किए होने वाला ईएमएफ. ओके, तो हम फिर भी देखेंगे टोटल अभी कंडक्टर, एक कंडक्टर में 25f है. अभी सेट कंडक्टर हो गया तो हम बनाएंगे 25f इंटू सेट, 25f इंटू सेट. 25f पहले स्लाइड से हमको मिला, अभी सेट कंडक्टर से तो 25f सेट बन गया. ये इक्वल टू 25f 2t, सेट इक्वल टू 2t, 25f 2t बन गया. हमको और भी बता सकता है 45ft, इट इज नोन एज 45ft. तो 45ft है ये वाला एक फेस में होने वाला ईएमएफ एवरेज वैल्यू, एक फेस में होने वाला ईएमएफ एवरेज वैल्यू है. तो हम पहले बताया एवरेज वैल्यू 1.11 से, यानी फॉर्म फैक्टर मल्टीपल किए तो हमको मिलेंगे आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू अभी बन गया 1.11 इंटू 45ft, दैट इज इक्वल टू 4.445ft volts. So this is the RMS value induced per phase, RMS value induced per phase. लेकिन हमको ये भी बताना है उसका पिच फैक्टर और कोडिंग फैक्टर. ओके, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो भी लेना है अल्टरनेटर में, क्योंकि हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग भी कर दिया है. ओके, हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग भी कर दिया है. उसके वजह से हमको क्या बनना है, ये केसी केडी और भी ऐड करना है. तो हमारा ईएमएफ इक्वेशन फॉर अल्टरनेटर अभी बनता है 4.44 केसी केडी 5ft. ओके, you may be remembering it is almost similar to our transformer. So this is our EMF equation 4.44 kc kd 5ft. So this is the EMF equation. So why we are studying EMF equation? What are the proportional item? Turns बढ़े तो उसका EMF बढ़ेगा. F means frequency. उसका speed बढ़े तो उसका EMF बढ़ेगा, और flux per pole बढ़े तो EMF बढ़ेगा. और this is the final EMF equation 4.44 kc kd 5ft. Up to this we have seen different items. What is winding pitch? What is full pitch? What is short pitch? And what is pitch factor? What is distributor winding, concentrator winding, and what is distribution factor? And we have derived an EMF equation. Okay. अभी हम कुछ बताएंगे अल्टरनेट पे लोड आ गया तो, ये थोड़ा सा जानकारी भी देना है. लोड अल्टरनेट पे आ गया तो ओके, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन पे लोड आ गया तो क्या होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है. ओके, कोई मशीन पे अल्टरनेटर से जो अल्टरनेटर पे लोड दे गया, आपके पास एक अल्टरनेटर दे दिया, आप उसको लोड करता है. लोड करे तो क्या होगा, उसका नो लोड वोल्टेज 415 सोचो, वो लोड किया तो 400 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ओके, तो ये क्यों रीजन में डिफरेंस होता है उसको बता देंगे हम. Okay, so we are telling about the voltage drop. अभी हम बताएंगे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में. ओके, अल्टरनेटर लोड किया तो क्या होगा, उसका वोल्टेज कम करेगा. वोल्टेज क्यों कम होता है उसके बाद अभी करता है. अभी अल्टरनेटर पे लोड आ गया तो उसका वोल्टेज कम होगा, क्यों, उसको रीजन पहचानना है अभी. ओके, आई एम स्पीकिंग हिंदी,
please do not chat. I'll just reduce my speed. Please wait. Okay. अभी हम बताता है अल्टरनेटर के लोड के बारे में. आपको एक अल्टरनेटर दे दिया और आप लोड करता है. लोड करने के समय उसका वोल्टेज चेंज होगा. सोचो आप 415 वोल्टेज देख लिया नो लोड पे. आपका वोल्टेज में नो लोड कंडीशन में 415 वोल्टेज है और आप लोड कर दिया तो वो कम होता है 400 तक. ओके, ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है वो बताना चाहता है अभी. ओके, तो क्या क्या रीजन है अभी देखेंगे हम. सो उसमें रेजिस्टेंस ड्रॉप ही होगा, आर्मेचर होगा, है ना. आर्मेचर है मशीन के अंदर, वो आर्मेचर में वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा. वो रेजिस्टेंस के मदद से और रेजिस्टेंस के कारण से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. रेजिस्टेंस के कारण से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ड्रॉप. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अदर थिंग्स. सो वोल्टेज ड्रॉप टू रेजिस्टेंस, armature resistance drop, and there is some other drop. It is known as leakage reactance. Leakage reactance. So हमारे लिए तीन कारण है, हमारे लिए तीन रीजन है वोल्टेज कम होने के लिए अल्टरनेटर का. पहला हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस. आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस तो क्या है, हमारा स्टेटर भी होगा, रोटर भी होगा. रोटर सोचो फील्ड है, ये फील्ड से आर्मेचर तक फ्लक्स आना है, लेकिन फील्ड में हो गया फ्लक्स पूरा आर्मेचर में नहीं आएगा. कुछ फ्लक्स तो लीक हो जाएंगे, वो हमारे लिए कोई उपकार का नहीं होगा. इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. सो जो फ्लक्स वेस्ट हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है. ओके, उसको बताता है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस. तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ये है, जो फ्लक्स हो रहा है हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है. क्यों यूजफुल नहीं है, फील्ड से लेके आर्मेचर तक पूरा फ्लक्स आना है, नहीं आ गया तो वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा. तो उसको बताएंगे लीकेज फ्लक्स. वो लीकेज फ्लक्स बनाने के लिए हम क्या करता है, कुछ वोल्टेज और करंट देता है और उसको एक वोल्टेज ड्रॉप बताएंगे हम. सो हमारा अल्टरनेटर का वोल्टेज ड्रॉप इसके भी अनुसार है, उसका लीकेज रिएक्टेंस के अनुसार. और तीसरा पार्ट ये है आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन आपको पहले ही जानता है डीसी मशीन में है, डीसी जनरेटर में और मोटर में आप देख लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर है इसमें भी. तो ये तीनों चीज थे. हमारा अगला टॉपिक भी बनाना पड़ेगा, वोल्टेज कैसे कम होता है, और दूसरा नाम है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन. सो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमको नेक्स्ट टॉपिक में बताना होगा. ओके, इन डिटेल व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टेस्ट वगैरह. कोई और टॉपिक, कोई और क्लास मिलेगा आपको इसके लिए, क्यों मिलता है. सो दिस वाज आवर क्लास टुडे रिगार्डिंग द पिक्चर्स ऑफ alternator and regarding the loading of alternator. Okay, and this PPT I'll be sharing with you. You can go to a website or a link that is bit.ly/alternator class. You'll be getting this item. Okay, you can download this item, and in the next class we'll be meeting for the voltage regulation part.